और वो भी इंग्लिश में, जिसको मैं देख के हैरान था। मोदी जी इंग्लिश बोल रहे थे? इंग्लिश में। Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. मेरा ना बड़ा एक अलग सा इनके बारे में एक राय थी कि यार मतलब एक चाय बेचने वाला है और लोगों की वो समाज सेवा करके अच्छी बातें करके, क्योंकि एक स्पीकर अच्छा है तो इसने जो है ना अपनी जगह बनाई है। और देखेंगे ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इस तरह से आपने डिफरेंट और देखे हैं, उनमें मोस्टली का सीईओ इंडियन ओरिजिन से है। तो मैं अब ये समझता था कि हम यूरोप से 50 साल 100 साल पीछे, अब मुझे ये लगने लगा कि हम इंडिया से तकरीबन 20-25 साल पीछे होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हे हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मोदी जी का एआई समिट में खिताब। एआई समिट में जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान तो आईटी की दुनिया में बहुत पीछे रह चुका है। हमें इस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हत्ता कि हमारा जो वाईफाई सिस्टम है वो भी बहुत स्लो चलता है, इतना कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो भी कुछ मिनट ले जाता है कई बारी। तो वैसे भी पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे माशाल्लाह डिपार्टमेंट भी ऐसे हैं कि वो डिफरेंट पाबंदियां लगाते रहते हैं, आईटी को अपना दुश्मन समझते हैं, यूथ को जो कि अवेयर हो जाएगी वो उसको ख़तरा समझते हैं अपने लिए। तो इसी चीज़ में हम तो जी रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों मोदी जी ने फ्रांस के साथ को चेयर किया है। फ्रांस के साथ को चेयर किया और एआई समिट में पूरा उनका एक उन्होंने डेलीगेशन के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखी है एआई से रिलेटेड, और वो भी इंग्लिश में, जिसको मैं देख के हैरान था। मोदी जी इंग्लिश बोल रहे थे? इंग्लिश में। वेरी गुड। तो मैं हैरान हुआ, मैंने शॉर्ट हाइलाइट्स देखी उसकी, फिर मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए इस वीडियो को। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बड़ा मज़ा आएगा। और साथ साथ में कमेंट्स में आपने हमें भी सजेशंस देनी है। Excellencies, friends, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend, President Macron, for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards
that uphold our shared values, address risk, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. सोलर अलायंस भी है इनका। वो बता रहे हैं कि फ्रांस के साथ हम पिछले कई सालों से ना इस पे काम कर रहे हैं एआई से रिलेटेड। नहीं, सोलर का भी एक प्रोजेक्ट और हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं कि एआई को कैसे मतलब इसके तोड़ में किस तरह से बैकवर्ड जाया जाए। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। हम वापस कैसे जाए, हमारी रेस उस तरफ है और इनकी रेस है कि एआई में कैसे एडवांस करें। As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good
We have one of the अच्छा, इसमें ये मोदी जी अभी बोल रहे हैं ना, अच्छा मेरा ना बड़ा एक अलग सा इनके बारे में एक राय थी कि यार मतलब एक चाय बेचने वाला है और लोगों की वो समाज सेवा करके अच्छी बातें करके, क्योंकि एक स्पीकर अच्छा है तो इसने जो है ना अपनी जगह बनाई है। और ये हाँ, एज अ मोदी जी पाकिस्तानी हमें 3 बार जो है वो मुल्क का गालिबन 3 बार प्राइम मिनिस्टर जो थर्ड है। टाइम मेरा ख्याल है ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मैं आज देख रहा हूँ कि मतलब मेरी जो राय थी वो बहुत गलत थी। अच्छा, ये हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सब ने भी फिर मुझे बताना है कि जो मैंने इनके बारे में कहा है, आया ये इंडिया में ऐसे ही है या अब भी वो बातों से ही मतलब आवाम को जो है अपनी तरफ जो है ट्रैक कर रहे हैं। world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you. जी, तो व्यूअर्स ये था मोदी जी का समिट में प्रेजेंटेशन। तो हमने देखा कि किस तरह इंडिया जो है वो एआई की दौड़ में बहुत आगे जा रहा है। अब अगर आप फोकस करें ज़कवान साहब कि अगर आप देखेंगे ना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इस तरह से आपने डिफरेंट और देखे हैं, उनमें मोस्टली के सीईओ इंडियन ओरिजिन से हैं। ये शो करता है कि इंडिया आईटी की दौड़ में आज से नहीं, बहुत देर पहले से बहुत आगे है। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। अच्छा, जो मैं बता रहा था वीडियो के बीच में मोदी जी के बारे में मेरी जो राय, मैं मतलब उनको कोई इतना टेक्निकल बंदा नहीं समझता होता था। तो ये आज जो मैंने उनकी वीडियो देखी, मतलब उनके इंडिया आज हमसे क्यों आगे है। हमने कभी सोचा है, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का और इंडिया का, तो इंडिया आज एआई के समिट को लीड कर रहा है फ्रांस के अंदर। और पाकिस्तान में हम लोगों ने क्या किया कि वाईफाई भी बंद कर दिया, और जो चल रहा है, अगर आप डाटा भेजें तो 2-2 दिन वीडियोस ही नहीं मिलती है। तो मतलब हम टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता जो हमारे लोग बैठे हैं वो क्या सोचते हैं, जो इन लोगों ने ये चीज़ डिसीजन करना होता है। एक तो हम पहले ही पीछे रह गए, उसके बाद ये वो चीज़ें हैं। मतलब देखो, मैंने मोदी जी को इसलिए टेक्निकल कहता हूँ, उन्होंने एग्रीकल्चर को भी डिस्कस किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को भी डिस्कस किया, उन्होंने हंगर को भी किया, उन्होंने पॉवर्टी को भी किया, उन्होंने ह्यूमन वायलेशन को भी किया, ह्यूमन हेल्थ को भी किया, एजुकेशन को भी किया, टेक्नोलॉजी को भी किया। तो और ये आपने फोकस किया शुरू में, उन्होंने एआई में आने वाले ग्लिचेस और कुछ जो सेटबैक्स हैं उनको भी डिस्कस किया। अब ये बंदा तब डिस्कस करता है जब वो मतलब उसके पास एक प्लान होता है, नेशनल एक्शन प्लान होता है। मतलब आपका एक मुल्क है, उसने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि मतलब अगर हमने 2020 से 2025 तक हमने ये टारगेट अचीव करने हैं, तो हम दुनिया के ट्रेंड के मुताबिक चल रहे होंगे कि नहीं। हम लोगों ने तो कोई मतलब इस तरह का किया ही नहीं है। और हमारा 5 साल का बताते हैं, 3 साल पॉलिसी चलती है, 3 साल समझ ही नहीं आती क्या होना क्या है। प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहता तो नहीं, मतलब वो एक, हम सियासत पे इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी और इंडिया के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मतलब हमारे मुझे याद आया, मेरे पास एक अच्छा लिंक मौजूद है जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन उसका भी देखेंगे डिफरेंट पहलुओं में। तो वो हम होपफुली नेक्स्ट वीडियो ही आपके सामने लेके आएंगे। मैं कंक्लूड करूंगा मोदी जी को कि देखिए, उन्होंने बताया एआई मतलब हम लोगों को भी लानी चाहिए पाकिस्तान में। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप मतलब एग्रीकल्चर टेक्निक्स को एआई की मदद से ऑपरेट करके आप प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी फूड शॉर्टेज का इशू रिजॉल्व होगा।
आप वाटर कंजर्वेशन के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। जो आपका पानी एक्स्ट्रा जाता है समंदर में मिक्स हो जाता है, जो कि पीने के काबिल नहीं रहता, फ्रेश वाटर आपका पहले ही कम है, आप टेक्नोलॉजी की मदद से उससे काफ़ी सारे जो है बचा सकते हो और पानी का और लोगों की ज़िंदगियों को कुछ देर और सहारा दे सकते हो। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, अब हर घर में टेक्नोलॉजी, आप अपने कामों को आसान बना सकते हो। आप इसकी वजह से काफ़ी जो काम जो आप अपना सारा दिन इस पे लगाते हो, आप इसको मॉडर्नाइज टूल के थ्रू, एआई के थ्रू आप उससे टाइम बचाओ और आप अपना माइंड नई इनोवेशन पे लगाओ। ऐसे ही है। मतलब आपको इतना रिलैक्स कर दिया है एआई ने कि आप जो जिन कामों में कन्वेंशनल तरीके से सारा दिन फंसे रहते थे वो एआई की मदद से हो जाएंगे और आप अपने माइंड को फ्रेश करके नए इनोवेटिव आइडियाज। तो मैं अब ये समझता था कि हम यूरोप से 50 साल 100 साल पीछे, अब मुझे ये लगने लगा कि हम इंडिया से तकरीबन 20-25 साल पीछे होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये फील होता है, ये मेरी राय है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा भी कोई इस तरह का कोई सिस्टम हो जिसमें हमारे नेशनल पॉलिसी हो और मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी मतलब चेंजेस हैं तो उन चीज़ों को असर ना पड़े। और काफ़ी हद तक जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो इन चीज़ों पे काम कर भी रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हम, क्योंकि हमारा ये चैनल रिएक्शंस का है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह खैर करेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब चलो उन्होंने मेहनत की तो आज वो वहां तक पहुंचे। हमने मेहनत करना शुरू ही नहीं की तो कोई भी टाइम मतलब वो देर नहीं होती, उस दिन से शुरू करें तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। काफी अच्छी ग्रिप है आईटी पे इंडिया की एज कम्पेयर टू हाँ, पॉपुलेशन भी है और उनकी ग्रिप है, उनकी मेहनत है, उन लोगों का इंटरेस्ट है और उनकी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। हमारी गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियस नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। तो व्यूअर्स फिर वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो रही है। तो हमने देखा है कि लंबी वीडियोस पे आपका फीडबैक जो है वो काफ़ी स्लो सुस्त हो जाते हैं और रिव्यू भी नहीं देते। कमेंट्स कीजिएगा लाजमी, आप लोगों ने हमें बताना है कि हम कैसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करें, आप अपनी सजेशन दें कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे हमारा रिव्यू या हमसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। शब्बा है। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली किस्त का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया।